are now looking at test paper solution for company accounts chapter. जो टेस्ट पेपर आपका था, फर्स्ट क्वेश्चन, state with reasons whether following statements are true or false. Reissue of forfeited shares can result in loss to a company. True or false? False. क्योंकि what is the maximum discount you can allow on reissue? रीइशू के टाइम पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो? जितना फोरफीचर का इनकम हुआ उतना ही. जितना फोरफीचर का इनकम है, क्या उससे ज्यादा आप डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो? नहीं. तो जो भी डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू अलाउ होता है, वो सारा फोरफीचर में से रिकवर हो ही जाता है. तो ऑन रीइशू ऑफ कंपनी, या तो कंपनी को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, या प्रॉफिट होगा, कभी लॉस पॉसिबल नहीं है. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. Since company has existence independent of its members, it continues to be in existence despite death, insolvency or change of members. So this is a true statement, क्योंकि कंपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी है इन आइज ऑफ लॉ. मेंबर्स का डेथ हो जाए, इनसेन हो जाए, मेंबर्स इनकेपेबल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. Company will still continue its existence. Forfeited shares cannot be issued at a premium. Again false. जो shares forfeit किए, क्या वो premium पे issue नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं. Maximum amount that can be collected as premium as a percentage of face value is 25%. False. There is no restriction, no limit on premium. Premium पे कोई restriction होता है क्या? नहीं. कितना भी चाहे उतना कंपनी premium ले सकती है. तो it's a false statement. Fund flow statement is a part of financial statement. False again. Cash flow statement is part of financial statement, not fund flow statement. Sixth, debentures cannot be issued at discount. False. Shares discount पे issue नहीं हो सकते हैं. Debentures definitely can be issued at discount. Seventh, interest on debentures is calculated on issue price. Again false. Interest on debentures company pay करती है, and company will always pay interest on face value, never on issue price. तो except two, all statement are false. Fill in the blanks दिया है. A share of ₹100 each is forfeited for non-payment of allotment money of 50, which is including premium, first and final call of 20. तो amount credited to share forfeiture will be how much? See, शेयर फोरफीचर में क्या ट्रांसफर होगा? अमाउंट विच इज पेड बाय शेयर होल्डर. शेयर होल्डर ने 50 रुपीज अलॉटमेंट नहीं, लेकिन उसमें 20 तो प्रीमियम है सर, प्रीमियम अलग कर दो. 30 रुपीज फेस वैल्यू का अलॉटमेंट पे नहीं किया है, एंड 20 फाइनल कॉल पे नहीं किया है. 30 एंड 20, 50 पे नहीं किया है, तो रिमेनिंग 50 पे कर दिया होगा ना. तो हाउ मच विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर? 50 रुपीज, विच इज पेड बाय शेयर होल्डर. Second, company invited applications for subscription of 5,000 shares. Applications were received for 6,000 shares and pro rata allotment was made. तो pro rata allotment का ratio क्या हो गया? What is ratio? Those who are applying for 6 shares are being allotted 5 shares. This is the ratio. फर्स्ट केस में बोला, if Shyam applies for 180 shares, if he is applying for 180 shares, कितने शेयर्स अलॉट होंगे उसको? 150. सेकेंड केस में बोला, if Shyam is allotted 350 shares, if he is allotted 350 shares, तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? तो 350 into 6/5. He must have applied for 420 shares. Correct? Third, A Limited issued equity shares of 100 each. It has called up 75 on each share but received 60. कंपनी ने 75 कॉल किया था, लेकिन मिला कितना? 60. तो शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय, रिमेंबर, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड और credited with called up amount on shares, not paid but called up amount on shares. What is called up? 75, sir. So share capital will be credited with 75. Next, authorized capital rupees 10 per share of a company is 5 lakh.
तो 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10, टोटल 5 लाख। इशूड कैपिटल 3 लाख है, तो 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच हम इशू कर चुके हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 लाख है, 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच उसका एप्लीकेशन मिला है, टोटल 2 लाख। 5 विद एप्लीकेशन, 2 विद अलॉटमेंट, 1 विद कॉल मंगवा लिया है। तो व्हाट इज कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स? व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? सर 20,000 शेयर्स पे जो सब्सक्राइब हुए हैं, जिसके लिए एप्लीकेशंस मिला है, वो 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 2, कॉल मनी 1, 8 रुपीज आर कॉल्ड अप। तो हाउ मच इज कॉल्ड अप? 1,60,000। सर इसमें से जो शेयर्स फोरफीट हो गए वो तो कैंसल हो गए, वो माइनस करना पड़ेगा ना। हाउ मेनी शेयर्स आर फोरफीटेड? 2,500 शेयर्स आर फोरफीटेड, 8 रुपीज कॉल्ड अप था, तो 20,000 इज बीइंग कैंसल्ड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, कितना दिखेगा हमारी बुक्स में? 1,40,000। शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद व्हाट अमाउंट? इट इज क्रेडिटेड विद 1,40,000। Unless otherwise stated, preference shares are cumulative और नॉन क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव। कुछ नहीं बोला है तो प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्यूमुलेटिव है। पार्टिसिपेटिंग की नॉन पार्टिसिपेटिंग? नॉन पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टिबल की नॉन कन्वर्टिबल? नॉन कन्वर्टिबल। रिडीमेबल की इरिडीमेबल? रिडीमेबल। तो कुछ नहीं बोला है, मतलब प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, रिडीमेबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। Correct. Question 6. B Limited was registered with capital of 2 crore divided into equity shares of 10 each. Registered capital मतलब authorized capital 2 crore है. It issued shares, it issued rupees 1 crore 80 lakh equity shares to public. Payable 3 on application, 3 on allotment and balance in 2 calls. पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 17 लाख शेयर्स, मतलब 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। टिल 31 मार्च ओनली फर्स्ट कॉल इज मेड, तो फाइनल कॉल 2 रुपीज का अभी तक कॉल नहीं किया है। ऑल शेयर होल्डर्स हैव पेड, मिस्टर सी होल्डर ऑफ 50,000 शेयर्स डिड नॉट पे कॉल मनी। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल दैट इज 2 करोड़ गिवन, क्वेश्चन में ही दे दिया है। इशूड कैपिटल वो भी दे दिया है, कंपनी ने 1 करोड़ 80 लाख रुपीस के शेयर्स इशू कर दिए हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 17 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है, तो 1 करोड़ 70 लाख, 17 लाख शेयर्स एंड ईच ऑफ ₹10, करेक्ट। अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? हाउ मच इज कॉल्ड अप कैपिटल? वन 17 लाख शेयर्स उसका एप्लीकेशन मिला है और हमने 8 रुपीज अभी तक कॉल किया है। फाइनल कॉल 2 रुपीज का कॉल नहीं किया है। वी हैव कॉल्ड हाउ मच? वी हैव कॉल्ड 8 रुपीज ऑन शेयर्स, तो 1 करोड़ 36 लाख इज कॉल्ड अप कैपिटल। उसमें से सी नाम का जो शेयर होल्डर है उसने 50,000 शेयर्स पे कॉल मनी पे नहीं किया है, तो कॉल्सन एरियर्स कितना है? सर 50,000 शेयर्स पे कॉल मनी 2 रुपीज का, 1 लाख रुपीज पे नहीं किया है, सो कॉल्सन एरियर्स इज 1 लाख। मतलब पेड अप कैपिटल कितना हो गया? कॉल्ड अप कैपिटल में से जो अनपेड अमाउंट है, जो पेमेंट नहीं मिला है, वो माइनस कर दो, तो पेड अप कैपिटल इज 1 करोड़ 35 लाख, करेक्ट। क्वेश्चन 7. Following journal entry appears in books of company: bank debit, loss debit to debentures to premium.
तो डिस्काउंट कितना है? अच्छा, ये जो लॉस डेबिट हुआ है 75,000 का, ये पूरा डिस्काउंट है क्या? पूरा का पूरा डिस्काउंट है क्या? सोचो सर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 50,000, तो वो 50,000 के लिए भी लॉस डेबिट हुआ होगा ना। मतलब ये जो 75,000 का लॉस डेबिट हुआ है, इसमें से 50,000 इज फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो डिस्काउंट बाकी का अमाउंट हो गया। मतलब 25,000 इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, करेक्ट। क्वेश्चन 8, XY Limited has issued 12% debentures on 1st April for 4 lakh. Interest is payable on 30 June and 31st December. तो 31st मार्च को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा? सी, अपना अकाउंटिंग ईयर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 2018 टू 31st March 2019. इंटरेस्ट कब पे किया जाता है? सर, कंपनी इंटरेस्ट देती है पहले 30 जून को और फिर 31st दिसंबर को। कंपनी ने 31st दिसंबर का डेट आ गया, यानी उसका इंटरेस्ट तो पे कर दिया होगा। तो अप टू 31st मार्च कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना बाकी है? कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? सर, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। 31st दिसंबर से 31st मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड है, करेक्ट वर्ड। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड है। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा? ऑन 4 लाख at 12% for 3 months. Correct? 12,000 is your interest accrued on 31st March. समझ में आया? Question 3, डिफरेंस बिटवीन दिया है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वी हैव डिस्कस दैट। आप लोग थियरी नोट्स रेफर करेंगे। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगेन रेफर थियरी नोट्स। Question 4, Raja Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of 10 each, amount payable as with application 3, with allotment 5, and balance with first and final call. Can we say 2 rupees with first and final call? Excess money received on application, applications for 70,000 shares were received. Issue किया था 50, application मिला है 70,000 shares के लिए. Allotment was to be made to all applicants on pro rata basis. Excess money received on application was adjusted towards sum due on allotment. Refund कुछ नहीं करना है. Ramesh, who applied for 700 shares, did not pay allotment money, and on his failure to pay allotment money, his shares were forfeited. Afterwards, first and final call was made. तो रमेश के शेयर्स अलॉटमेंट के इमीडिएटली बाद हमने फोरफीट कर दिए थे। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाया गया। आधार, who has been allotted 500 shares, did not pay first and final call. His shares were also forfeited. Out of forfeited shares, 900 shares were reissued at rupees 8 per share as fully paid. Reissued shares include all shares of Ramesh. Pass necessary journal entries in books of company. तो हमें पास करना है जर्नल एंट्रीज। इन बुक्स ऑफ राजा लिमिटेड। लेकिन जर्नल एंट्रीज पास करें उससे पहले अपना वर्किंग फॉर प्रोरेटा फैक्टर पहले कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले तो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशो क्या है? जो 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, कंपनी उसको 50,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, करेक्ट? तो प्रोरेटा फैक्टर कितना होगा? टोटल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन कितना होगा? एप्लीकेशन के साथ टोटल कितना पैसा मिलेगा? सर 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला है, 3 रुपीज हमने पर शेयर मंगवाया है, तो 2,10,000 विद एप्लीकेशन टोटल मिलेगा। अमाउंट ट्रांसफर्ड विद एप्लीकेशन टू कैपिटल
एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए? सर हमने 50,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, तो 50,000 शेयर्स का 3 रुपीज, 50,000 शेयर ही आप अलॉट करोगे ना, तो वो 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 1,50,000 विद एप्लीकेशन एडजस्ट होना चाहिए, विद ट्रांसफर होना चाहिए विद कैपिटल। तो सरप्लस पेमेंट कितना मिल चुका है हमको? सरप्लस हमको 60,000 रुपीज मिल चुका है। तो व्हाट विल बी योर प्रो रेटा फैक्टर? प्रो रेटा फैक्टर क्या होगा? सर सरप्लस दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड। कितने शेयर्स अलॉट किए? 50,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो प्रो रेटा फैक्टर कम्स टू 1.2। प्रो रेटा फैक्टर इज 1.2। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट शुड बी ब्रेकअप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। What should be breakup of installments? ओल्ड ब्रेकअप क्या था? एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज कॉल किया था, विद अलॉटमेंट 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। न्यू ब्रेकअप क्या होगा? ये 1.2 जो प्रो रेटा फैक्टर है, जो सरप्लस अमाउंट पर शेयर है, वो अलॉटमेंट में से माइनस करके एप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा। मतलब एप्लीकेशन हो जाएगा 4.2 और अलॉटमेंट हो जाएगा 3.8। दैट विल बी न्यू ब्रेकअप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। विल नाउ स्टार्ट पासिंग एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशंस मिला उसके लिए, बैंक डेबिट। फर्स्ट 3 एंट्रीज तक तो पुराना ओल्ड ब्रेकअप ही रखना है। तो 70,000 इंटू 3, 2,10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। सेकेंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? सर हमने 50,000 शेयर्स अलॉट किए, वो 50,000 शेयर्स का 3 रुपीज, 1,50,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। सरप्लस का क्या करना है? सर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। $60,000, या हम बोल सकते हैं 50,000 शेयर्स पे सरप्लस पर शेयर कितना था? सरप्लस पर शेयर 1.2 था ना, दैट विल बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स पे? 50,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, 50,000 शेयर्स पे 5 रुपीज, 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए हमको? अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए? बहुत ध्यान से। अलॉटमेंट 50,000 शेयर्स पे फोर्थ एंट्री है, तो न्यू ब्रेकअप के हिसाब से जाएंगे ना। 50,000 शेयर्स पे न्यू ब्रेकअप के हिसाब से 3.8 रुपीज मिलना चाहिए ना हमको। 50,000 शेयर्स पे 3.8 रुपीज अलॉटमेंट का मिलना चाहिए।
लेकिन इसमें से रमेश के शेयर्स पे हमको अलॉटमेंट नहीं मिला है। अच्छा, रमेश ने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अगर रमेश 700 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, रेशो क्या था अप्लाइड और अलॉटेड का? रमेश इज अप्लाइंग फॉर 700 शेयर्स, तो उसको अलॉट कितना शेयर्स हुआ होगा? 500 शेयर्स अलॉट हुआ होगा ना। मतलब रमेश ने 500 शेयर्स पे जो उसको अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट 3.8 का पे नहीं किया है। फोर्थ एंट्री ऑनवर्ड्स न्यू ब्रेकअप ही रहेगा ना। 50,000 इंटू 3.8 1,90,000 माइनस 500 इंटू 3.8, रमेश के 500 शेयर्स पे 3.8 नहीं मिला है, तो 1900 नहीं मिला है, तो 1,90,000 माइनस 1900 188,100। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। करेक्ट, चेक करो। अलॉटमेंट 250 डेबिट हुआ है, यहां पे 60 और यहां पे 190, 250 क्रेडिट हो गया। क्लियर? आगे अब दे आर सेइंग रमेश के जो 500 शेयर्स थे वो इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फोरफिट कर दिए, अलॉटमेंट के तुरंत बाद, फाइनल कॉल से पहले फोरफिट कर दिए। तो नेक्स्ट एंट्री रमेश के शेयर्स फोरफिट करने का पास करना पड़ेगा हमें। टू फोरफिट शेयर्स ऑफ रमेश, एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल तो हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है। ये 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 3.8, मतलब ये 500 शेयर्स पे 8 रुपीज आर कॉल्ड अप। 500 इंटू 8 4,000। टू शेयर forfeiture, हाउ मच इज पेड ऑन दी शेयर्स? कितना पेमेंट दे दिया है ये शेयर्स पे? सर 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे नहीं किया है, मतलब खाली 4.2 एप्लीकेशन का ही पे किया है। तो 500 इंटू 4.2 1900। And to calls in arrears, sorry, 500 into 4.2 2100, and to calls in arrears 1900। करेक्ट। अच्छा, ये शेयर्स अभी फोरफिट तो किए, रीइश्यू नहीं किए, तो अब नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल का देंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, फाइनल कॉल 500 शेयर्स जो कैंसल हो गए उस पे तो मंगवाया नहीं जाएगा ना। सिंस दोस 500 शेयर्स आर कैंसल्ड एंड नॉट रीइश्यूड, वो 500 शेयर्स तो भी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो हम फाइनल कॉल वो 500 शेयर्स पे मंगवाएंगे ही नहीं। हम फाइनल कॉल मंगवाएंगे ऑन 49,500 शेयर्स। 49,500 शेयर्स पे 2 रुपीज। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल जब मिलेगा हमको, कितना पेमेंट मिलेगा? 99,000 मिलना चाहिए। उसमें से आधार नाम का शेयर होल्डर था जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। तो 99,000 में से आधार के 500 शेयर्स पे 2 रुपीज, आधार के 500 शेयर पे 2 रुपीज फाइनल कॉल का, 1000 रुपीज नहीं मिला है हमको। कितना मिल गया है? 98,000।
Collisionaire's account debit. $500 into 2, 1,000. To share final call. आफ्टर फाइनल कॉल आधार के शेयर्स भी हम फोरफीट कर रहे हैं, तो फोरफीचर के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अच्छा, आधार के शेयर्स तो हम आफ्टर फाइनल कॉल फोरफीट कर रहे हैं, तो पूरा 10 रुपीज कॉल्ड है, कॉल्ड अप इज 10 रुपीज। टू शेयर फोरफीचर, आधार ने क्या पे नहीं किया है सर? 2 रुपीज का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है। आउट ऑफ 10 2 अनपेड है, तो 8 रुपीज आर पेड, 8 रुपीज आर पेड। to Collisionaire's. Now company is reissuing how many shares? Out of these, company is reissuing 900 shares at rupees 8. Company 900 shares reissue कर रही है. So for reissue entry हो जाएगा bank debit 7,200. Share forfeiture account debit. $900 into 2, 2 रुपए हुआ ना लॉस ऑन रीइशू। 10 का शेयर 8 में रीइशू किया, मतलब 2 रुपीज इज लॉस। टू शेयर कैपिटल, लास्ट हाउ मच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज इंपॉर्टेंट। शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? नाउ रमेश के हमने कितने शेयर्स रीइशू किए? ऑल 500 शेयर्स। अच्छा, रमेश के 500 शेयर्स, फिफ्थ एंट्री देखो, रमेश के 500 शेयर्स का फोरफीचर कितना था? सर रमेश के 500 शेयर्स का फोरफीचर 2100 था। टोटल 900 शेयर्स इशू किए हैं, रमेश के 500 मतलब आधार के 400 शेयर्स रीइशू किए। आधार के सारे शेयर्स रीइशू नहीं किया, आधार के 400 शेयर्स ही रीइशू किए। आधार का पर शेयर फोरफीचर 8 रुपीज था, तो 400 इंटू 8, ये 400 शेयर का फोरफीचर 3200 हो गया। मतलब जो 900 शेयर्स हमने रीइशू किए, जो 900 शेयर्स हमने रीइशू किए, उसका टोटल फोरफीचर, दिस इज 400 इंटू 8, जो 900 शेयर्स हमने रीइशू किए उसका टोटल फोरफीचर 5300। उसमें से हाउ मच इज लॉस ऑन रीइशू? एट द टाइम ऑफ रीइशू लॉस कितना हुआ? सर 1800 का लॉस हुआ, तो बैलेंस 3500 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच विल बी ट्रांसफर्ड? 3500 will be transferred to capital reserve. सर वो पर शेयर वाला मेथड, उससे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं। पहले रमेश के शेयर्स पे, रमेश के शेयर्स पे पर शेयर कितना फोरफीचर था? 4.2। पर शेयर कितना फोरफीचर था? 4.2। री इशू के टाइम पे कितना लॉस हुआ? 2 रुपए लॉस हुआ ना, तो 4.2 माइनस 2, रमेश के 500 शेयर्स पे 2.2, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
करेक्ट, 1100। आधार के 400 शेयर, अच्छा आधार के शेयर्स पे पर शेयर कितना फोरफीचर था, 8 पर शेयर फोरफीचर 8, उसमें से लॉस ऑन रीइश्यू 2 रुपीज, तो आधार के 400 शेयर पे 6 रुपीज बैलेंस बच गया, वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। तो 1100 प्लस 2400 3500 जाएगा ना कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, दैट विल गिव यू कैपिटल रिजर्व, करेक्ट। तो प्लीज पॉज दिस एंड कॉपी दिस। Question 5 then. Question 5. Hawkins Limited issued 70,000 12% debentures of 100 each at a discount of 5% and are redeemable at 110. By means of journal entries, how would you record the above? See, when we are passing entry, first entry will be for receiving applications. Bank debit. आपको 70,000 शेयर्स पे 95 रुपीज मिलेगा ना, 70,000 डिबेंचर्स पे 95 रुपीज विद एप्लीकेशन मिलेगा। 6 लाख 70 lakh minus 3 lakh 50, 66 lakh 50,000 to debenture applications. Second entry, when debentures are allotted, debenture applications account debit 66 lakh 50,000. Discount on issue of debentures debit discount on issue of debentures debit 3 lakh 50. Loss on issue of debentures debit, we are going to redeem these debentures at a premium of 10%, तो 7 लाख। सर हमको ये दोनों अलग अलग नहीं दिखाना है, हमको पूरा 10 लाख 50 लॉस में डेबिट करना है, कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। टू डिबेंचर्स, टू 12% डिबेंचर्स 70 लाख, and to premium on redemption of debentures, premium on redemption of debentures 7 lakh, correct? Please pause and copy.